بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تمینہ بشارت بات کر رہی ہوں، ہیلتھ اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ اینڈ بزنس کوچ۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ای میل۔ کسی بھی قسم کی آپ کو کنسلٹیشن، کسی بھی قسم کی بات کرنے کے لیے، یا کسی بھی قسم کی کوچنگ یا ہیلپ کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پہ بھی آپ کے لیے بہت یوزفل ویلیویبل مواد موجود ہے، آپ اس پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کارگر ثابت کر سکتے ہیں اس سارے مواد کو۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا لیڈرشپ تھرو سیلف ڈیولپمنٹ۔ پیچھے ہمارا ایک پراپر سلسلہ چل رہا تھا جہاں پہ ہم نے اسٹارٹ لیا تھا کمپاؤنڈ افیکٹ سے۔ کمپاؤنڈ افیکٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں ہر اٹھایا جانے والا چھوٹا چھوٹا قدم، ہر چھوٹا چھوٹا اسٹیپ، ہر چھوٹا چھوٹا فیصلہ آپ کی زندگی کو پازیٹیو اور نیگیٹو چینجز کے ساتھ آگے بڑھا بھی سکتا ہے، اور آپ کو پیچھے بھی تنزلی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ وہیں سے بات کی تھی کہ ہم کمپاؤنڈ افیکٹ کا اپنی سیلف ڈیولپمنٹ میں کیسے جو ہے وہ کردار عملی بنا سکتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ تو آپ نے کر لی، لیکن اس سیلف ڈیولپمنٹ کو زندگی میں اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سیلف ڈیولپمنٹ جب ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہم نے لے لیے، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنی زندگی میں لا کے بہتری بنا لی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ہمیں لے کے کہاں پہ جائے گی؟ سیلف ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کو لیڈرشپ کے قابل بنائے گی، یعنی آپ اپنی زندگی میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسروں کی قیادت کر کے۔ اس کے بارے میں جو بیسیکلی تھیم ہے وہ کیا ہے؟ لیڈرشپ تھرو سیلف ڈیولپمنٹ میں مین بات آخر کیا ہے؟ جس میں آپ اپنا فائدہ تو کر ہی رہے تھے، جس میں آپ نے اپنی ذات کی تشکیل کی، اس میں ترقی کے لیے جو ہے جتنے آپ کو لوازمات ضرورت تھے، چاہے وہ پریکٹیکل تھے چاہے تھیوریٹیکل تھے، آپ نے علم حاصل کیا، عمل کیا، رہنمائی حاصل کی اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اب اس کا جو تھیم ہے وہ لیڈرشپ میں کیسے اپلائی ہوگا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ذاتی ترقی جو ہے آپ کو نہ صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، بلکہ آپ کو قیادت کے قابل بناتی ہے، آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دیتی ہے جس سے آپ دوسروں کی بھی رہنمائی کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک سٹیپ وہ تھا جہاں آپ نے پہلے خود سیکھا، دوسروں سے رہنمائی حاصل کی، اب آپ اس سٹیج پہ آ گئے کہ جب آپ نے اپنے اندر وہ والی تبدیلیاں رونما کر لی، وہ والی تبدیلیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس پہ عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ آپ نے اپنے ان لیڈر سے یا ان اساتذہ سے سیکھی تھی کہ جس کی جو آپ کے لیے ضروری تھی، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی ذات میں بہتری لانے کے لیے۔ اب وہ جب چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، وہ خصوصیات آپ کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہیں، تو اب آپ پہلے سے بہت بہتر شخصیت بن چکے ہیں۔ جب آپ ایک بہتر شخصیت بن چکے ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ابھی آپ اس اسٹیج پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ دوسروں کی قیادت کر سکیں۔ وہ خصوصیات جو آپ نے اپنے قائد سے حاصل کی، اس کو آپ دوسروں میں ٹرانسفر کر سکیں، دوسروں کو بتانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ وہ تھیوریٹیکلی بھی ہے اور پریکٹیکلی بھی، یعنی آپ دوسروں کو زبانی بھی سمجھا سکتے ہیں، اور آپ کے عمل، آپ کا کردار جو ہے وہ بھی ایک چلتا پھرتا رول ماڈل ہوگا دوسرے کے لیے، جو آپ کو دیکھے گا کہ آپ نہ صرف سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ عمل کر کے بھی بتا رہے ہیں، جس سے جو آپ کو اپنے مینٹورشپ میں لے گا، یا آپ کو اپنا لیڈر سمجھے گا، یا آپ کو آپ کے سپورٹ کر کے آپ کو اپنا رول ماڈل مانے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کو سمجھ آئے گی کہ مجھے سکھانے والا، سمجھانے والا جو بھی شخص میرے سامنے موجود ہے، وہ صرف کہہ نہیں رہا، بلکہ اس پہ خود بھی عمل پیرا ہو کے اپنی جو ہے شخصیت میں بھی نکھار لا رہا ہے، اور اگر میں اس کو فالو کرتا ہوں اور اس کی قیادت میں اپنے آپ کو سونپتا ہوں، تو میں بھی اپنے اندر وہ ساری کی ساری خصوصیات پیدا کرنے کے لائق ہو سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پراپر طریقے سے پریکٹیکلی اور تھیوریٹیکلی دونوں طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ اچھا، سیلف ڈیولپمنٹ از دا فاؤنڈیشن آف لیڈرشپ۔ خود کی ترقی جو ہے قیادت کی بنیاد ہے، یعنی کہ آپ نے ایک
लीडरशिप के लिए जो पहली ईंट होती है वो आपने रख दी है। जब आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया, आपने अपने आप में खामियां और खूबियां निकाली, और खामियों को कम करने की कोशिश की, खूबियों को मजीद इन्हेंस करने के लिए उसमें मजीद वर्कआउट किया, तो क्या हुआ कि आपने अपने अंदर वो खासियत पैदा कर ली कि जो लीडरशिप की बेस है, पहली ईंट है, जो आपको इस काबिल बना रही है कि आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देने के काबिल हो गए हो। सो अब आप दूसरों को भी ये चीज फिर समझाने के काबिल हो, आप इस चीज की अहलियत रखते हो कि आप दूसरों को ना सिर्फ मरकज आपके थीम में जस्ट वो चीज हो, बल्कि प्रैक्टिकल में भी वो चीज जब होगी तो आप उनको नताइज के साथ जो है वो समझा सकते हैं कि क्या चीज बेहतर है और क्या चीज नहीं है। अब लीडरशिप में मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, ठीक है। आपकी जो शख्सियत है वो रोल मॉडल बन जाती है, आपकी आदत के काबिल हो जाते हैं, आपकी बात में असर होता है, आपके अमल में असर होता है, आप दूसरों की खिदमत कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट होके एक वर्ड को तश्कील देती हैं लीडरशिप। यानी आप उसके गाइड बन सकते हैं किसी के, आपको क़यादत का जो है चांस आपके अंदर डेवलप हो जाता है, आपके अंदर वो खसूसियात डेवलप हो जाती हैं जो आप दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आप खुद भी बेहतर बन सकते हैं और दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं, और इस तरह से आप माशरती तौर पे एक फाल किरदार अदा करते हैं, माशरे को भी बेहतर बनाने का और आगे बढ़ाने का। अच्छा, अब लीडरशिप की बात हो रही है तो इससे ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक बंदा, कोई खास बंदा ही जो है वो लीडर बन सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान, कोई आम से आम इंसान भी अगर अपनी खसूसियात पे काम करता है, अपनी खूबियों पे काम करता है, अपनी खामियों को जो है पसे पुश डालता है, उनको साइड पे कर देता है, और तरक्की के जितने भी अवामिल हैं उन पे अमल पैरा होता है, उनको सीखता है, समझता है, अमल में लाता है, तो हर शख्स, कोई भी हो, जो खुद को बेहतर बनाने पे काम करेगा वो कायद बन सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नशिस्त नहीं, या कोई स्पेसिफिक हस्ती नहीं कि जिसके लिए सिर्फ लीडरशिप मुख्तस कर दी जाए, बल्कि हर वो शख्स जो अपनी जात पे काम करेगा वो लीडर बनने के अहल है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि लीडरशिप जरूरी क्यों है, ठीक है, इसकी क्या अहमियत है। तो उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि रहनुमा जो होते हैं या लीडर्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लुएंस होता है, वो दूसरों पे असर करते हैं। कैसा असर करते हैं? पॉजिटिव असर, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने अब डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आपने अच्छी चीजों पे काम किया, ना कि जो है वो गलत आदत को अपनाया। तो जब वो डेवलपमेंट आप में हो गई है तो वो दूसरे पे अच्छा असर डालेगा। जैसे कि पहले भी आपको बता दिया कि एक शख्स होता है, जैसे किताबों में बातें लिख दी गई हैं और दीवारों पे भी लिख दी गई हैं, तो इल्म तो बहुत है, लेकिन ये जो लीडर कहलाने के काबिल बनता है, जो लीडरशिप की अहलियत रखता है, वो शख्स प्रैक्टिकली आपको जब बता रहा होता है कि जो चीज उसने जबान से कही वो उसके किरदार में, वो उसके फेल में शामिल है, तो फिर लोगों को समझने में और उस पे कारगर साबित होने के लिए क्या होगा कि वो उसको देखेंगे कि ये सिर्फ बातें नहीं करता है, ये प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस देता है। तो इसका असर फिर लोगों की शख्सियत पे जो है वो मस्बत होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप सेल्फ डेवलपमेंट में काम कर चुके होते हैं, अपनी अच्छी आदत को इनहेंस कर चुके होते हैं, तरक्की की राह पे गामजन हो चुके होते हैं, तो क्या होता है कि इसमें बहुत मेन चीज जिसकी होने की वजह से तरक्की की राह हमवार हो जाती है, और अगर ना हो तो आप तरक्की के जो मंजिल का रास्ता है उस पे कदम रखने से भी बहुत जो है डर जाते हैं, उसकी तरफ बढ़ने के आपके अंदर अहलियत ही नहीं आती, आपके अंदर हौसला ही नहीं पैदा होता। तो सबसे मेन चीज क्या होता है कि जब आपके अंदर वो खासियतें डेवलप हो चुकी होती हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप भी हो जाता है, साथ के साथ कि आप कर सकते हैं, आप किसी भी हर्डल को फेस कर सकते हैं, आप किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं, किसी भी चैलेंज को फुलफिल कर सकते हैं। हर्डल्स तो हर जगह होती हैं, तो उस हर्डल को निपटना कैसे है, उसका असल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो ये चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है कि मुश्किल तो हर कदम पे है, हर काम में है, लेकिन पीछे नहीं हटना, बल्कि उस मुश्किल से लड़ना है, इस मुश्किल का हल निकाल के हमने आगे बढ़ना है, ताकि हम कामयाबी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को साइड पे करके उसको सीढ़ी की शक्ल दें, और उस सीढ़ी का एक एक स्टेप आगे चलते जाएं और अपनी मंजिल को करीब करते जाएं और मुश्किलात को दूर भगाते जाएं। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है।
लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप दूसरों की खिदमत कर रहे हैं, आप दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं, ना कि लीडरशिप का मतलब किसी का बॉस बन जाना है, या किसी को किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूर करना है, या फिर उसको बिल्कुल ही रिमोट कंट्रोल की तरह उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लेते हैं। बल्कि ऐसा होता है कि लीडर ना दूसरों को भी इस काबिल बनाता है कि वो तरक्की की राह पे चलें, किसी का ऑर्डर ओबे करवाने की बजाय, या अपने ऑर्डर के ओबे करवाने के चक्कर में नहीं होता, बल्कि खुद तरक्की करता भी है और अपने साथ मिले हुए लोगों को भी तरक्की के रास्ते पे चलाता है, और उनकी भी मुश्किलात को आसानियों में चेंज करता है। ठीक है। स्किल्स यू गेन फ्रॉम सेल्फ डेवलपमेंट, सबसे मेन चीज क्या है कि जब आप अपनी जात पे काम करते हैं, उसकी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, तो क्या होता है उससे जो आपके अंदर स्किल्स आती हैं, जो सलाहियतें पैदा होती हैं, वो क्या होती हैं? आपकी कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बातचीत का तरीका जो है वो बेहतर हो जाता है। आपको बातचीत किस बंदे से, किस नेचर के बंदे से किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बात करनी है, और किससे बात करनी ही नहीं है, इन सब चीजों का फिर आपको अंदाजा हो जाता है। आप ये सारी चीजें भी इस चीज में सीख रहे होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ी स्किल है। अगर इस स्किल को जो हासिल कर लेता है, तो वो अपनी मंजिल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस तरीके से तय कर लेता है। क्योंकि कम्युनिकेशन कोई भी चीज है, तो आप अगर लीडर भी बन रहे हैं तो वो लोगों के बीच में बनेंगे, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो भी लोगों के बीच में होगा, अगर ताल्लुकात हैं तो वो भी लोगों के साथ होंगे। तो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा किरदार है। कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली बातचीत का तरीका, और वो बातचीत का तरीका किसके साथ कैसा होना चाहिए, आपके अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए, आपका टाइम ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, आपकी वॉइस टोन कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें कम्युनिकेशन स्किल में आ जाती हैं। ठीक है। तो ये सलाहियतें आपके अंदर जो है वो डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है, यानी आपको जज्बात की किस हद तक नॉलेज है, आप किसी के साथ जज्बाती तौर पे कैसे अटैचमेंट बनाते हैं, किसी के दुख का बायस तो नहीं बन रहे इमोशनली। आपके अल्फाज जो हैं कम्युनिकेशन में जो है वो किस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या आपकी बात सिर्फ लफ्जी फॉर्मूला है, या वो अल्फाज हैं कि जैसे ही आप मुंह से बात निकालें और वो अगले के दिल में असर रखे, उसके दिल में जाके पहुंचे, और आपका असल मैसेज जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो कन्वे हो जाए। अच्छा, उसके बाद मेन चीज क्या होती है? जब आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया, आपने अपनी खामियों को दूर कर लिया, आपने अपनी अच्छाइयों को इम्प्रूव कर लिया, तो क्या होगा कि फिर आप के लिए फैसला साजी का जो स्टेप होता है किसी भी चीज में, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। ठीक है, फैसला करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपको अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, मुश्किलात और आसानियाँ सब कुछ जब दिखाई देने लगता है, तो फिर आपकी कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, और किसी भी चीज के लिए फैसला लेना हत्तुल इम्कान आसान हो जाता है। कि आपने अगर किसी चीज के बारे में किसी भी किस्म का फैसला, चाहे फॉर एग्जांपल हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमने उस बिजनेस में किस फील्ड में जाना है, उसके लिए आपके लिए डिसाइड करना इस तरीके से आसान हो जाएगा कि आपको अंदाजा हो गया कि इन किन मराहिल से गुजर के मुझे इस स्टेप को पहुंचना है। तो फिर आपको चैलेंजेस का आइडिया हो गया, तो फिर आपके लिए डिसीजन इस हिसाब से सही हो जाएगा कि आपको पता चल गया कि क्या ये मैं मुश्किलात को फेस करने के अहल हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं, तो इनकारी फैसला यानी नेगेटिव फैसला करना भी आसान है, और अगर आप उस चीज के अहल हैं, उस चीज को फेस कर सकते हैं, तो फिर पॉजिटिव फैसला लेना भी आसान हो जाता है। अच्छा, जब फैसला लेना आपके लिए आसान हो गया, तो फिर क्या हो गया कि आपने अपने मसाइल का हल तलाश कर लिया। फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि ये मसला हो गया तो फिर मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालूं, कहाँ से आएगा, हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो जब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, तो फिर आप अपने लिए खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिचुएशन खुद ही बना लेते हैं, खुद ही प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। और ना सिर्फ खुद के लिए बन जाते हैं, बल्कि आपकी जो सोच समझ का जाविया है वो वसी हो जाता है। और इस जुमरे में आके क्या होता है कि आप दूसरों के लिए भी मुश्किलात का हल तलाश कर लेते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। अच्छा, अप्लाइंग लीडरशिप इन डेली लाइफ, अब जिंदगी में जो है वो हम रोजमर्रा की जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें क्यादत या लीडरशिप का क्या रोल होता है, और उसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? ये चीज भी बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी जिंदगी में, कि क्या हम सिर्फ अपनी ही जिंदगी में
जी रहे हैं या मर रहे हैं या अपनी ही जिंदगी में इन्वॉल्व हैं, या हमारे साथ दूसरे लोग भी अटैच हैं, हम क्या करेंगे इस मामले में, हम दूसरों को लीड कैसे करते हैं, वो खासियत जब आपके अंदर लीडरशिप की पैदा होती है तो जैसे बात हुई थी कि लोग आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा कि आपने उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, कि जब आप किसी को मसले में देखते हैं या लोग आपको इस काबिल समझते हैं कि अपने मसले का आपसे इजहार करते हैं, आपका मसला, अपना मसला आपसे शेयर करते हैं, तो आपने लोगों की मदद से जो है स्टेप ले लेना है। जिस हद तक प्रैक्टिकली है, थियोरेटिकली है, अगले बंदे के साथ आपने कनेक्शन बना के उसको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपने रोल मॉडल कैसे बनना है, किसी भी मामले में दूसरे का रोल मॉडल आप कैसे बनेंगे, कि आपके कॉल और फिल में तजाद नहीं होना चाहिए, जो भी आप कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी होना चाहिए, यानी आपकी प्रैक्टिस में भी वो चीज होनी चाहिए। आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, यानी जो मुश्किल अगर आपको दरपेश आती है वो किसी और को पहले पेश आ चुकी हो और वो आपसे सवाल करे कि इस मुश्किल में मुझे क्या हल करना चाहिए, तो आप उसको जो मशवरा दे रहे हैं वो कुछ और यही सेम सिचुएशन अगर आपके साथ आती है तो आप उसके बजाय कोई और सोल्यूशन कर रहे हैं, तो फिर आपके कॉल और फेल में तजाद आ जाता है। और इस तजाद को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो शख्सियत है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट माशरे पे डालती है। तो किसी भी मामले में जो कहें वही करें, अदरवाइज कहने से भी अवॉइड करना चाहिए। इनकरेज एंड मेंटोर अदर्स। अब दूसरों की हौसला अफजाई आपने किस तरीके से करनी है कि जब उन्होंने कोई चीज परफॉर्म कर ली है, चाहे वो गलत हुई या सही हुई, उनकी हौसला अफजाई इस अंदाज से करें कि ये स्टेप आपने लिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें बेहतरी क्या थी कि आपने स्टेप लिया, ना कि आप रुक गए। लेकिन अगर उसकी कोई गलती आपको दिखाई दे तो उसकी उस तरीके से आप हौसला अफजाई करें कि ये स्टेप, इससे अगर मजीद आप बेहतर लेते और इस तरीके से ये लिया जा सकता था तो मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी कि आपने अगले के एक्शन की हौसला अफजाई भी कर दी और साथ में उसको गाइडेंस भी दे दी कि आपने किस तरीके से परफॉर्म करके मजीद जो है खातिर खा अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने हैं। ठीक है। अच्छा, अभी क्यादत में जो है वो अकदार, यानी उसके अंदर जो खासियतें होती हैं एक कायद के अंदर, वो क्या होनी चाहिए, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक आम इंसान के लिए भी। और जब आप लीडरशिप के स्टेज पे जाते हो तो वहां पे जाके इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। ठीक है। इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी एंड विजन एंड प्लानिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे मैं पहले बात करते हैं दयानत और सच्चाई की। ये आपकी शख्सियत में बहुत बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों? जब तक आप दयानतदार नहीं होंगे, आपके किरदार में सच्चाई नहीं होगी, तो आपका अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं होगा, आप अपने अंदर ही डेवलप नहीं कर सकते, तो फिर आप माशरे में कैसे किसी की लीडरशिप कर सकते हैं? इनफैक्ट आप घर में भी वो लीडरशिप का रोल प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि आप में दयानतदारी और सच्चाई नहीं है। आप कहें कुछ करें कुछ, तो कॉल और फेल का तजाद जब मौजूद है तो फिर वो चीज आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी, आपको लीडरशिप की तरफ नहीं लेके जा सकती। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि कोई झूठा इंसान उसकी क़यादत करे, कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि जो बंदा दयानतदार ही नहीं है, ठीक है, उसने जो है वो मुझे क्या गाइड करना है, मेरी क्या हेल्प करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपका ट्रस्ट ही ब्रेक हो जाता है। जब ट्रस्ट नहीं रहेगा तो आगे की कहानियां तो खत्म ही हो जाती हैं। फिर क्या है कि उसके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और रिस्पेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, उसके अंदर अपनी जात की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर दूसरों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद उसमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, यानी कि वो उसके अंदर बहुत जरूरी फैक्टर क्या है, हमदर्दी होनी चाहिए। और ये हमदर्दी सिर्फ दिखावा नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और ना सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी, जहां जहां उसे चांस मिले उसको हर एक के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करना चाहिए। अब हमदर्दी में भी ये चीज नहीं है कि कोई शिकारी जानवर सामने आ जाए और वो उसके साथ जो है वो प्यार मोहब्बत शुरू कर दे। हमदर्दी डेफिनेट बात है कि उसी से होगी जो हमदर्दी का हकदार है। ठीक है। उसके बाद जब आप किसी को लीड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आपका अपना थीम क्या है, आपने
किस मंजिल पे जाना है, आप किस रास्ते से गुजरेंगे, इस सारी चीज की जो है आपके पास पूरी की पूरी प्लानिंग मौजूद होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम मंजिल के करीब जा सकते हैं, और किन हर्डल्स को जो है हम फेस कर रहे हैं, इन हर्डल्स को हमने रास्ते से हटाना कैसे। तो ये सारी खासियतें किस में होती हैं, लीडर में होती हैं। जब वो किसी का कायद बनेगा, इनफैक्ट लीडर सबसे पहले अपनी क़यादत करता है। डेफिनेट बात है कि जब उसने सेल्फ डेवलपमेंट की है तो उसने अपनी क़यादत की है, अपने खूबियों और खामियों को जो है मद्देनजर रखते हुए उन पे काम किया है, तो वो यही चीजें जब जो है उसके अंदर प्रैक्टिकली होती हैं, थ्योरेटिकली होती हैं, तो वो यही चीज दूसरों को भी ट्रांसफर करता है। और ये तमाम वैल्यूज जिनकी बात हुई है, ये ना सिर्फ उसके अंदर खुद होंगी, बल्कि जब वो प्रैक्टिकली रोल मॉडल है तो जिनको वो अपनी क़यादत में लेता है, जिनकी रहनुमाई करता है, उनके अंदर भी डेवलप करने की कोशिश करता है। और ये आम लाइफ में भी बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं, स्पेसिफिक मामले में जाते हैं, इनफैक्ट बिजनेस में जाते हैं, या और कोई किसी भी किस्म की फील्ड को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपकी शख्सियत का बहुत अहम रोल जो है वो ये सारी बातें होंगी। तभी आप माशरे में तरक्की के रास्ते पे जा सकते हैं। बिल्डिंग अ लेगेसी, अब ये क्या होता है? विरासत बनाना, ठीक है। लीडरशिप किस चीज का नाम है? आपने जो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बनाए, उसका असर दूसरों पे छोड़ा जाए, ठीक है। क्यादत के मस्बत असर छोड़ने का नाम है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपने जो चीजें की होंगी, जाहिर है प्रैक्टिकली की होंगी, जबान से किसी को रहनुमाई दी होगी, और उसने अपनी जिंदगी में जब उन चीजों को अप्लाई किया होगा, तो जो आने वाले रिजल्ट्स होंगे, तो वो रिजल्ट्स सिर्फ आप तक या जिसको आपने बताया वहां तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में वो ट्रांसफर होते जाएंगे, ठीक है। तो आपकी शख्सियत का असर ना सिर्फ आप तक रहा, बल्कि दूसरों तक भी मुंतकिल होगा। इस तरह क्या होगा कि आपकी जो लीडरशिप है उसने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है, एक मस्बत असर छोड़ा, जिससे ना सिर्फ आपकी बेहतरी हुई, बल्कि आपसे जुड़े हुए बाकी लोगों की और माशरे की भी बेहतरी में आपका जो है हिस्सा डल गया। तो इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट की बात हुई थी कि आप खुद पे गौर करेंगे, खुद पे काम करेंगे, और छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाएंगे, तो ही आपकी जो शख्सियत है उसमें निखार आएगा, उसमें खूबसूरती आएगी, और वही चीज आप दूसरों में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा? मुआशरा भी खूबसूरत खूबसूरत बनता जाएगा और तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है, अगर हम खुद पे थोड़ा सा काम करें और खुद पे थोड़ा सा गौर करें। ट्रेन एंड एम्पावर न्यू लीडर्स। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि मस्बत असर तो आपने छोड़ दिए, तो क्या आपका जो काम है वो यहीं पे स्टॉप हो गया? क्या आपकी जिम्मेदारी यहीं पे खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने अपने जैसे और लोगों को डुप्लीकेट करना है, वो किरदार दूसरों के लिए भी फाल बनाना है, उसमें दूसरों को भी रहनुमाई करनी है, और उनको भी इम्पावर करना है, उनको भी इख्तियार देना है, और उनको भी उस लेवल पे लेके आना है कि वो भी अपने आप को वैसा रोल मॉडल बना सकें, और अपन जैसे आपने उनको डेवलप किया है, वो फर्दर दूसरों को भी डेवलप करके माशरे में मजीद इस चीज को, यानी खूबसूरती को, अच्छाई को, दयानत को, सच्चाई को, ईमानदारी को दूसरों में मजीद ये ट्रांसफर करें, उसका डुप्लीकेशन करें, और इस चीज को मजीद बढ़ा सकें। कंटिन्यू सेल्फ इम्प्रूवमेंट टू स्टे रेलिवेंट। अभी ये नहीं कि जैसे आपने वो सेल्फ डेवलपमेंट पे किसी दर्जे पे जाके काम कर लिया, आपने बेहतरी कर ली, आप लीडर भी बन गए, आपने कुछ लीडर तैयार भी कर लिए, तो आपकी ड्यूटी स्टॉप हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्टेप कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए। जब आप कहीं पे भी रुकेंगे तो जैसे रुका हुआ पानी भी बदबूदार हो जाता है, तो यही हिसाब इंसान का भी होता है कि अगर वो लर्निंग छोड़ देता है, तो क्या होगा? उसकी डेवलपमेंट भी रुक जाएगी, उसकी इम्प्रूवमेंट भी रुक जाएगी, और जब उसकी इम्प्रूवमेंट भी रुक जाएगी, डेवलपमेंट भी रुक जाएगी, तो क्या होगा? वो अपनी ही शख्सियत में बेकार लगने लगेगा खुद को। इससे कॉन्फिडेंस जो इतनी मेहनत के बाद हासिल हुआ था, वो कॉन्फिडेंस जो है वो गुम होना शुरू हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस को बहाल रखने के लिए, अपनी क़यादत की जो स्टेज है उसको बरकरार रखने के लिए,
आपको भी साथ साथ लर्निंग करनी है। जब आप किसी के लीडर बन रहे हैं तो आपको एक स्टेप उन लीडर से आगे रह के मजीद उनके सीखने का सबब बनना है, और अपनी तरक्की को भी मजीद इम्प्रूव करते रहना है, ताकि आप जो है मौजूदा वक्त जो जितनी जिद्दत आ चुकी है, जितनी तरक्की हो चुकी है, उस वक्त के साथ, उस तरक्की के दौर के साथ अपने आप को रख सके, ना कि आप अपने आप को भी स्टॉप कर दें और अपनी तरक्की को भी स्टॉप कर दें और अपनी शख्सियत को भी बेकार कर दें। तो समरी, अब समरी में क्या है कि इतनी लंबी डिबेट के बाद जाहिर है कोई नतीजा तो निकालना होता है। तो अ, अब नतीजा क्या निकला कि सेल्फ डेवलपमेंट हमें कहाँ लेके जाएगी? लीडरशिप स्किल्स पे। और लीडरशिप स्किल्स का क्या होगा कि वो हमें बिगर इम्पैक्ट देंगी। किस तरह का बिगर इम्पैक्ट देंगी? कि आपने खुद अच्छा अमल किया अपने लिए, अपनी शख्सियत पे पहले उस पे काम किया, फिर आपने उसको पुख्ता किया, उस पुख्तगी के बाद उसको दूसरों पे ट्रांसफर किया। दूसरे जब आपसे मुतासर हुए, आपने उनको इस लेवल पे लेके गए कि वो लीडरशिप की क्वालिटीज उनकी भी इम्प्रूव करवाई। इम्प्रूव करवाने के बाद क्या हुआ कि आप जैसे मजीद लोग तैयार हो गए। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या जाना है कि उसका बिगर इम्पैक्ट जिसकी बात हो रही है वो क्या है? बिगर इम्पैक्ट यही हुआ कि आप अकेले नहीं रहे। आपने अपने जैसों को जब डुप्लीकेट किया तो वो मल्टीप्लाई हो गए। और फिर वो तरगीब वहां पे रोकनी नहीं है, वो स्टेप वहां पे रोकना नहीं है, बल्कि उनको भी यही रास्ता दिखाना है कि मैंने आपको तैयार किया, आप आगे लोगों को तैयार करें। और इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जैसे बुराई एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की तरफ ट्रांसफर होती है और वो फैल जाती है, तो इसी तरह से अगर आप वो स्टेप पॉजिटिवली ले रहे हैं, वो स्टेप आप अच्छाई के लिए ले रहे हैं, तो क्या होगा कि वो अच्छाई भी इसी तरह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की तरफ ट्रांसफर होगी। तो माशरती तौर पे वो अच्छाई फैल जाएगी। और उसके बाद जो मेन बात थी वो क्या थी कि लीडरशिप जो है वो होल्ड करने की चीज नहीं है कि आप किसी को कंट्रोल में ले लें, किसी के बॉस बन जाए, बल्कि क्या होगा कि क़यादत एक मुसलसल सीखने का अमल है और खिदमत का सफर है। जब आप इस नजरिए से किसी को लीड करते हैं तो जो आपका जो कैरेक्टर है माशरे में, वो मजीद अच्छे तरीके से बिल्ड होता है, और आपकी अ, जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं मजीद इनहेंस होती हैं, आपकी मकबूलियत में इजाफा होता है। ठीक है। तो होप्स हो कि लीडरशिप का टॉपिक आप तक पहुंचाने में जो कोशिश की है वो कामयाब हो सकी होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, कोई भी कंसल्टेशन या कोई भी अपॉइंटमेंट आपको चाहिए हो, तो कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप का भी और ईमेल भी आपके सामने आ रही है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।